फिर उसमें फिर मेरा शेड्यूल मीटिंग आया, इसमें एक ब्लू कलर का जो मीटिंग अभी चल रहा है वो दिखा रहा है तुमको, उसमें ज्वाइन क्लिक किया। Lakshmi also, she is going to take your class today, since I'm not feeling well, so I'm just waiting for her to join. लॉबी जैसा कोई हो, कोई तो बताना मुझे। हाँ, ओके, जब तक वो व्हेन शी जॉइंस, टेल मी दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट यू वुड लाइक टू डू इन दिस कोर्स। Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, means you are asking for group assignment or individual? That is what you are asking? See, And later every on, year we give a group assignment, but this year I don't know how you people will manage to do if we give group assignment. If you can manage to do, we can give, no problem. But how will you manage? That is another thing. मैम हमें असाइन किया है एक सब्जेक्ट पे ग्रुप असाइनमेंट, लैंग्वेज। हाँ मैम, curriculum. लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में। That is true. See, for the sake of giving, we can give, but how exactly you will manage? That is the another thing. Yes, ma'am. It's difficult to manage everything. Because I don't know, we can have two different set of assignments. Those who want to do group assignment, we can give them group assignment. Those who want to do individual assignment, for them we can keep individual assignment. अच्छा, जयलक्ष्मी मैडम आए तो मुझे बताना जरा, नहीं दिख रहे हैं। हाँ मैम। पर अभी मैं आपकी अटेंडेंस शीट भी नहीं डाउनलोड कर पाऊंगी, क्योंकि किसी ने जो सेटिंग चेंज करा है उसमें अटेंडेंस नहीं डाउनलोड होगी आज। कितने लोग हो आप अभी क्लास में? 82 मैम। 82। वापस लॉग इन किया, ठीक है, आजा आजा। मीटिंग नाउ करके एक ये दिख रहा है ना तुमको, जहाँ पे ब्लू कलर दिखेगा, 24 मिनट से मीटिंग चल रही है, वो दिख रहा है, उसको ज्वाइन करो। वो नेट का प्रॉब्लम होगा या फर्स्ट टाइम लॉगिन है ना तुम्हारा, तो इसीलिए भी हो सकता है। कोई नहीं, करो, भी हो जाएगा। बस मैं इनको वही डिस्कस किया कि असाइनमेंट का, उसको ज्वाइन करो, ज्वाइन। मेरा दिख रहा है ना तुमको कि ये ब्लू कलर का स्ट्रिप वाला, हाँ, उस पे करो, करो क्लिक हियर टू ज्वाइन द मीटिंग करो। मैं तुमको व्हाट्सएप पे लिंक भेजू? हो जाएगा। हाँ, ज्वाइन नाउ, आ जाए। So we were thinking of having that kind of grouping. Otherwise, what we do is every year we give
group assignments to students, and we divide them in the group of 7, 8, and of their choice. No, not their choice. We give them the grouping that because it is multidisciplinary, so students from different group are put together. Student from science background, commerce background, language background. That way we do the grouping. Now this year, first of all, tell me what sort of assignment we should give. See, otherwise sometimes we give visit sort of thing also, but this time that is also not possible. We have one Oriental Institute in Baroda, and that was owned by our university only, which has very primitive, very, you can say, ancient scriptures and everything. So what assignment we gave is that visit to that place and then making report of it, and just finding out the interdisciplinary or integrated scripts. And when we teach history of language, so it has its own importance. So that sort of assignment we used to give. But now this year we were also discussing yesterday. We had a meeting of all the teachers of the course. So sir said, Panigree sir asked them also, उनका बुद्धिमान दिमाग क्या कहता है थोड़ा पता करो. तो बताओ आपकी बुद्धिमानी. Hey Jaya, are you there? Jaya Lakshmi? Yes, madam, I am in. तो चेहरा दिखा दे अपना. चेहरा, हाँ, अब दिख रहा है क्या चेहरा? आएगा शायद, ऐसा लग रहा है. Yeah. नहीं आया चेहरा तो. वीडियो तो ऑन कर दिया है मैंने. आएगा अभी, वो थोड़ा टाइम लेगा. Anyway, students, let us welcome Dr. A.V. Jayalakshmi. She has been with us since I think 7 to 8 years, and she was JRF SRF from our department only, and sharing this course since 3-4 years with me. And to me, she is a very creative and very intellectually sound person. I request Jaya, you can introduce yourself, your subject background, and then you can take over the class. Thank you. Thank you so much, madam. You have appreciated me a lot. As madam told, I have been a student here in the department. Even Jyotsna ma'am was my teacher, and now I share with her as a colleague the certain subjects. I've done my MSc in zoology, and I've also done my sociology, masters in sociology and psychology. And with madam, I'm sharing this subject for about 3 years now. And that's all. I mean, I have done my PhD in education from the same department. And as madam told, I was a JRF and SRF. So had as I had the fellowship, I had lot of time to spend in this department. And I could have a feel of the entire culture of the department for so many years. Hope that we all will have a good time with this course, and we'll be learning from each other. I hope I was audible. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. good. So as madam was discussing with you about the assignment, first we'll like to know your ideas, because you've been learning this course for quite some time now from Panigrahi sir and Jyotsna ma'am. So what are your thoughts about what kind of assignment should be given to you? Just share your ideas, whatever comes to your mind. There is nothing called right or wrong.
Okay. Uh, हेलो। हेलो। hello. हाँ, यस मैम, मेरे पास कुछ Yeah. May I know who आइडिया is है। speaking? यस मैम, खुशहाली है। Okay. Okay. तो मैम हम ऐसा कर सकते हैं कि जो रिसेंटली जो एजुकेशन के अंदर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, तो उनको जो हाँ. है थोड़ा समझ करके हम अपने आइडियाज जो है प्रेजेंट करें। हम्म. रिसर्च आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए हैं उसमें क्या करोगे? हाँ मैम, उनको उनके मतलब 2-3 जो है रिसर्च आर्टिकल जो है उसको समराइज करके हम Okay. एक असाइनमेंट करें तो। हम्म. आ, तो उससे क्या मतलब what will be हमको क्या मिलेगा उससे? यस मैम, उसके अंदर हमको जो है एक तो वो होगा कि हम वो जो है रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे। ओके. ठीक है, तो हमको जो है और एक एक्सटेंसिव स्टडी हो जाएगा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कि ओके. क्या क्या नई चीजें हो रही हैं, ओके. और इसके अंदर रिसर्च कितने तौर पर चल रहा है। मतलब आप बोल रहे हो कि जो एजुकेशन रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो पढ़े और उसका आप कुछ समरी टाइप बनाओ. आई होप आई हैव यस गॉट योर एग्जैक्ट। आइडिया क्लियर. यस मैम। ओके. ओके. व्हाट एल्स? और क्या Ma'am, हम maybe one assignment can कर be, सकते हैं? ma'am, maybe one assignment can be on importance of various disciplines or subjects and interrelationship between them. ओके. That way. Yes, ma'am. ओके. Like how disciplines मतलब interdisciplinary है तो मतलब हम उस पर कंटेंट प्रिपेयर करें एंड फिर कोई एक Yes. एग्जाम्पल आप अपना के नाम थ्रू। बताएंगी तो अच्छा होगा Ma'am, बिकॉज यस मैम। आई एम नॉट जी। नोइंग योर नेम. या. ma'am Shobita. ओके शोभिता बोलो. Ma'am, importance of disciplines and subjects का and उसमें differences क्या है? This ओके. sub topic what we are learning since so many days, we can make assignment on this aspect as well. या वो तो आप अपने एग्जाम के लिए भी पढ़ोगे ना बिकॉज आपको वो पढ़ा दिया है. Yes, ma'am, but we'll have a more in-depth knowledge if we'll make assignment. I think maybe. ओके. आपके क्या इनपुट्स होंगे उस असाइनमेंट में? डिफरेंस बता दोगे आप डिसिप्लिन और सब्जेक्ट के? तो वो आपको क्लास में टीचर्स ने बताया है. फिर आपके क्या इनपुट्स होंगे उसमें? एज अ स्टूडेंट आपका भी तो कुछ इनपुट होना चाहिए ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या होगा उसमें आपका इनपुट? आप कौन से बैकग्राउंड से हैं? Ma'am, I'm from science background. ओके. मैम मे बी हम इंडिविजुअल डिसिप्लिन को भी लेके इलेबोरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं. या कैसे? फिर मतलब जो भी स्टूडेंट है जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन से बिलोंग करता है तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली वो डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करे कि इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है अभी के सिनेरियो में, फ्यूचर में क्या क्या है, प्रोस्पेक्टस है वो सब. ओके. दैट वे. हाँ ये भी कर सकते हैं. मतलब अपने अपने डिसिप्लिन का आप इम्पोर्टेंस सिनेरियो स्कोप बताओगे वगैरह. अभी और फ्यूचर में उसके प्रोस्पेक्ट्स बताओगे. यस मैम. Prospects in terms of education. Yes, ma'am, in overall aspects, not only education but all other things as well. हाँ ये भी कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स Ma'am, हाँ. Yes, someone else was also to speak. Please speak. yes, ma'am. कौन है? Ma'am, जैसे कि हम Just Zeba let here. me know your name. Zeba. Hello. Hello, ma'am. अरे आवाज क्यों नहीं आ रहा?
Hello, ma'am. Your voice is not audible. आई Yes, थिंक ma'am. मैडम का कनेक्शन गया लगता है. हेलो जया. Students, you will be surprised to hear that she met with an accident around Diwali, and she had some injuries in the head, and then now she is ready with the for taking the classes. Maybe I think she is disconnected. आउट हो गई है. Okay, you can carry on with the ideas you were giving. Swati, you were saying something. Tell me. मैम कृति. हाँ कृति बोलो. हाँ मैम. मैम फिर एक आइडिया मतलब हम ये भी दिखा सकते हैं कि जो वेरियस सब्जेक्ट्स है उनका Yes, इंटरडिपेंडेंस या Zeba, फिर you speak afterwards. Let Kruti complete. Let us hear all hear to Kruti first. Then I'll go to Zeba and then I'll go to Swati. हाँ Kruti बोलो. हाँ मैम. सो मैम लाइक वेरियस सब्जेक्ट्स जो है उसमें से कोई भी 2 या 3 पिक करके उन सब्जेक्ट्स का इंटरडिपेंडेंस क्या है या फिर इंटर रिलेशन क्या है उसके रिगार्डिंग भी हम लाइक वी कैन प्रिपेयर द कंटेंट. Okay. Yes, Swati, your turn. Yes. Swati बोलो. Zeba. मैम जैसे हम ना मैम ऑडिबल. Yes, you are audible. और कोई भी हैंड रेस कर रहा है पर मुझे नाम नहीं पता चल रहा है. अदिति बोलो. Yes, ma'am. Ma'am, we can take a particular maybe an idea या तो कोई concept जैसे कि Marxism या फिर Freud की theory or anything like that and कोई multidisciplinary approach to that. मतलब because literature students भी पढ़ते हैं, psychology students भी पढ़ते हैं, तो maybe something like that. कि कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस क्या हो सकते हैं लाइक दैट. Okay, that can be there because see when I say if you take Max Weber, say for example, so economical aspect also we can take up. Then some management point of view also we can take up. Then for the same thing we can take up for you can say philosophical aspects. So Exactly. that is यही how we can take up. Okay. Yes, Zeba, बोलो. मैम जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज होती है ना, वो स्टोरीज के ऊपर से हम यानी क्या कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जैसे साइंस में उस वो स्टोरी के रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे हम कुछ भी अपने हिसाब से कोई एक स्टोरी चूज करके उसके ऊपर से कॉन्सेप्ट बता सकते हैं. नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाएगा. नहीं लगता ऐसा नैरो डाउन नहीं होगा. एक मिनट. हाँ जया. यू आर आउट. नेट कनेक्शन प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है तो कैसा लॉग आउट हो? ओके. नहीं होना है. विंडोज डिफेंडर प्रॉब्लम कर रहा है. तो मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड हो सकता है. नहीं, मैं वो तो ठीक है, वो कुकीज तो इनेबल करने से ही यू विल बी एबल टू डू इट. बट अभी के लिए तो ठीक है. बट आगे तो तुम्हारा ये सेशन है 3 बजे से फिर भी वापस से और आज तो मैं थी क्लास में.
अभी एक काम करो, वापस कोशिश करो आने की और देखो क्या होता है ना। मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो जय तुम। हाँ, हमारे बैकअप रखो, तो कभी इधर से नहीं होता है तो उधर से यू कैन टेक द क्लास। ठीक है, आओ, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक ठीक। यस यशी, बोलो। जेबा was saying something, जेबा का तो बात हो गया। आई सेड कि वो थोड़ा नैरो डाउन हो सकता है, दैट इज व्हाट आई मीन। नैरो डाउन लग रहा है मुझे, इट इज पर्टिनेंट टू ओनली वन सब्जेक्ट। आई विल गिव यू आइडिया रिलेटेड टू दैट आफ्टर आई मीन लिसनिंग टू अदर्स ऑल्सो। यस यशी, बोलो। Ma'am, Panigra sir taught us about discipline and subject. थोड़ा So जोर से what बोलो we ना बेटा। can do, Ma'am, Panigra sir taught us about discipline and subject. So what we can do, we can take our own discipline. Matlab, I am from English literature background, so I can take that, and what I can do is own literature as a subject and as a discipline. Then I can add that what is history of that background and how it can be taught in school and how it can be developed. Okay. See, that can be taken up as a subject, but I think let me clarify one thing. When you all are giving all these things, when I'm saying assignment, it is not 5 marks, 10 marks. It is 25 marks. 1 credit course hai. 25 mark is equal to 1 credit course. Now, if we are spending I mean, for 1 credit course, there is 16 to 19 hours work depending on the nature of course. So if you see the amount of work which is to be assigned to you is of that nature which requires 19 hours academic involvement. Are you getting what I am saying? कि आपको ये जो काम हम दे वो ऐसा होना चाहिए जो आपको 18 से 19 घंटे तक करना पड़े, ना कि आप 1 घंटे में बैठ के 1 दिन में खत्म कर दो। समझ में आया? तो उस तरीके का असाइनमेंट आपको करना है, राइट? हाँ, अभी कोई और कुछ बोल रहा था? Well, we can include historical perspective, future aspect, implementation of theories. मतलब कोई एक टॉपिक लो, उसमें ये सब पॉइंट इंक्लूड कर दे हम। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फिर उनकी सब थियोरीज और फ्यूचर पर्सपेक्टिव, तीनों चीज इंक्लूड कर दे तो फिर इट वुड बी ओके। ओके, दैट कैन बी देयर। यस यस, बोलो। And ma'am, we can add our critical view on that subject. Critical view on that subject. Means a small research type. Something like that. There won't be any sort of research in this when you are doing. See, what I would like to share with you all is the assignments which we gave 2-3 years back, and that was we also enjoyed when students have presented that assignment. We have given them certain topics. List of topics were given. Say for example, Dowry, then Diwali celebration, Navratri celebration, then Christmas celebration, then Ganesh Chaturthi festival, Durga Puja celebration, then you can say marriage. I mean the event of marriage which is organized as a whole, and then it can be any social event. ओके, जैसे किसी का जन्मदिन का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वो, तो एनी सॉर्ट ऑफ सोशल इवेंट. एंड then we told them that you can also add any such event if you are aware of, and then assess
or try to get the roots of that causes of celebration. Let me give you one example, and then how various disciplines and disciplinary knowledge contributes in that. Say for example, if I say नवरात्रि celebration, अभी नवरात्रि नहीं हुआ इस बार, क्या इम्पैक्ट आया उसका? नवरात्रि नहीं हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट आया? मेजर कर रहे थे नवरात्रि के टाइम तो loss हुआ। एक एक करके पहले कौन कृति बोले, फिर नहीं, ये सूबेदार कौन है? शोभिता, दिस इज शोभिता। हाँ, शोभिता पहले बोलेगी, उसके बाद कृति। हाँ शोभिता बोलो, उसके बाद अदिति। मैम, ड्यू टू दैट सोशल इंटरेक्शन गॉट हैम्पर्ड। दैट सोशल इंटरेक्शन हैम्पर्ड हो गया। ओके, कृति? मैम इकोनॉमिक लॉस हुआ। एकदम लॉस हुआ, किसमें लॉस हुआ? मैम जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनका हुआ, फिर जो नवरात्रि के टाइम अपने स्टॉल्स वगैरह रखते हैं उनका लॉस हुआ। ओके, ठीक है। अदिति? Ma'am, I was about to say that economic thing only. Very good, economic loss. Okay, Vruti? हाँ मैम, जो नवरात्रि के जो सब चनिया चोली वगैरह सब मिलते थे तो बिजनेस में भी लॉस हुआ। ओके, उपासना? मैम मुझे असाइनमेंट के बारे में बोलना था कि डिसिप्लिन अबाउट लर्निंग के बारे में, कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो अभी तक हमने क्यों पढ़ा है, तो हम लोग इसके रिलेटेड भी कोई कर सकते हैं असाइनमेंट। मतलब समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझाओ। डिसिप्लिन फॉर लर्निंग मैम, कि हम लोग अभी तक हमने जो भी मतलब डिसाइड किया है, जैसे कि 10th के बाद हमें कोई भी अगर कोई भी हमें स्ट्रीम लेना है तो हमने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये हमने क्यों लिया, तो हम लोग ये भी डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग के ये भी असाइनमेंट कर सकते हैं। डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग कहाँ आया उसमें? वो तो स्ट्रीम हो गया ना, दैट इज नॉट डिसिप्लिन। पर मैम हम लोग पढ़ते तो है ना कि हमने क्यों पढ़ा। क्या क्यों पढ़ा? कि हमने कोई भी 10th के बाद हमने जो भी डिसीजन लिया है कि हमें ये स्ट्रीम में क्यों जाना है और फिर हमें आगे क्या करना है, तो वो पूरा असाइनमेंट में हम लोग कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा उसको मुझे कोई कहीं लिंक नहीं नजर आ रहा है उपासना, या मैं समझ नहीं पा रही हूँ, दोनों में से एक चीज है। मैम जैसे हम लोग टू मी, टू यू साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो है वो जब बच्चा 10th में है उसको पता नहीं है कि मुझे ये डिसिप्लिन में जाना है, उसके दिमाग में होता है एक कोर्स कि मुझे बड़ा होके ये बनना है, एंड सो ही और शी इज गोइंग फॉर दिस डिसिप्लिन। रेयरली कोई बच्चा ये लेवल पे ऐसा होगा जिसको ये समझ में आता होगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है या मुझे मैथमेटिशियन बनना है। Am I right or wrong? I may be wrong. आप लोग मुझे क्रॉस आर्ग्यू कर सकते हैं, बट मुझे लगता है पर कुछ बच्चे होते हैं ना जो उनकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होती, फिर भी वो लोग जब स्कूल में होते हैं तभी उनको डिसाइड होता है कि नहीं हमें यही करना है, और वो लोग वो ही करते हैं। हेलो, क्लास में जो क्लास पे टेलीफोन करो, कौन बोले? हाँ करने थोड़ी रन कर। एक्चुअली आज इन लोगों का सेकेंड ईयर वाले बच्चों का इंटर्नशिप शुरू हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, दे आर अनएबल टू ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम। उन लोगों के लिए टीम में आज पहला दिन है। हाँ उपासना, यू वांट टू से समथिंग? मैम वही कि कुछ बच्चों को तो मतलब स्कूल से या तो फिर वो सेकेंडरी हाई स्कूल में होते हैं तभी से उनको पता होता है कि नहीं मुझे यही करना है, पर उसके बाद भी वो लोग मतलब उनकी कंडीशन ऐसी होती है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी उनके लिए मतलब अच्छा नहीं रहता, फिर भी वो लोग उनका जो भी सब्जेक्ट है वो कुछ भी करके मतलब ख़त्म करते हैं। तो डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग में मुझे यही बताना है कि अगर अच्छे से मतलब बच्चों को ऐसे समझाया जाए
या तो फिर उनको टीचर ही ऐसा कुछ पढ़ाए, तो फिर वो लोग आगे बढ़ के मतलब उनकी जो भी एनालिटिक स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा हो सकती है ऐसा। यू मीन टू से हम आपको जो बता रहे हैं अबाउट नेचर ऑफ साइंस, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, नेचर ऑफ लैंग्वेज, वो हम उनको बताए व्हेन दे आर इन द स्कूल, दैट इज व्हाट यू वांट टू से? हाँ मैम, ऐसा ही कि अगर स्टडी में ही हम लोग ऐसा कुछ समझाए तो उनको तभी उनको पता चल जाता है कि हमें आगे क्या करना है ऐसा। क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं ना जो कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेते हैं, फिर कुछ See, for the counseling and vocational guidance related subject, this can be wonderful assignment, Upasna, but when we are saying interdisciplinary field, how exactly you will relate it? Okay. है ना? Are you getting what I'm trying to say? Yes ma'am, I getting. Okay. So I was talking about that Navratri celebration, वहाँ से हम deviate हो गए थे। तो Navratri is a festival. It is a social festival or a religious festival? Religious. Religious festival? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Navratri is okay. Ganesh Chaturthi? It also, ma'am. Religious festival. Ma'am. Actually, No. No कौन बोला? मैम उपासना, क्योंकि Hello, ma'am. Both, I. Ma'am, हाँ, both. It is both. क्योंकि दोनों नहीं, गणपति तो मैम Yes, ma'am. सभी सेलिब्रेट करते हैं ना। गणपति तो मैम सब सेलिब्रेट करते हैं ना। तो उसको सोशल, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, सोशल है या रिलीजियस है? सोशल। 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 आपको पता है गणेश चतुर्थी, नवरात्रि जो है, नवरात्रि को अभी थोड़ा साइड में रखे, तो गणेश चतुर्थी का शुरुआत कहाँ से हुआ था और क्यों हुआ था? महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र से मैम। हाँ ठीक है, कैसे हुआ था और कब हुआ था? पुणे महाराष्ट्र। हेलो मैम। हाँ वैभवी हियर। हाँ बोलो। हाँ मैम, लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था ये गणपति उत्सव। वेरी गुड। क्यों किया था? हाँ, ताकि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमें मिलने नहीं देते थे। ओके। और तो हमें जो मीटिंग अरेंज करनी थी, तो इसीलिए उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया ताकि इंडियंस मिल सके, कुछ प्रोग्राम बना सके उनके मतलब अगेंस्ट में, इसीलिए बेसिकली। तो रिलीजन फैक्टर था ही नहीं, सोशल फैक्टर था सबसे पहले। See, your voice is coming inside my class is going on, Siddhi. Vaibhavi, you are very correct. It has been initiated by Lokmanya Tilak. इन्होंने शुरुआत किया था इसको to foster the freedom movement, or because people were not allowed to get together, but on the name of social, religious practices, so Britishers were not in a position to say no to these kind of practices. So what they have identified, because महाराष्ट्र में गणपति को सब मानते थे, तो they have started with गणेश चतुर्थी। और साउथ में अगर हम जाए, साउथ नहीं, कहाँ दुर्गा पूजा कहाँ पे फेमस है? कोलकाता मैम। कोलकाता में, तो वहाँ पे दुर्गा पूजा शुरू कर दिया इन्होंने। दुर्गा पूजा हैज another origin also. It is in the name of शक्ति, माँ शक्ति, it has been celebrated, and उसका भी एक अलग स्टोरी है। It has a story with the prostitutes and giving importance to them also. So see, there are different stories related to the various festivals. But as we say, Ganesh Chaturthi started with this, that उनको जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो प्रसाद में इनके जो क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो बोलते हैं, जो होना है इनका डिस्कशन का, और ये सारी चीजें लिख के ये लोग उसके अंदर प्रसाद देते थे। तो जो भी मैसेजेस वो लोगों को पास ऑन करना चाहते थे, वो सबके पास चला जाता था। बिकॉज अगर फ्रीडम मूवमेंट के नाम पे अगर ऐसा कुछ भी ये लोग बाहर निकालते, तो नोबडी कुड हैव बीन एक्सेप्टेड इट। तो इसीलिए दे हैव दैट
this movement. Now what has become, Ganpati has now become the economic festival, right? Am I right or wrong? See, apart Yes, from ma'am. the religious practices, the economic aspect of it, that time it has a different spirit. Now in the name of religion you can gather the mass. Now people have started using it for the political benefits also, because now if you see, one pandal is funded by BJP, one pandal is funded by Congress, or some new upcoming leaders or anything who are there. Now they have started using it for their political benefits. So like that, Yes, ma'am. if you see various festivals which are celebrated, or various phenomena, if you say dowry, or if you remember, what is the basic intentions behind dowry? ओरिजिन जब हुआ था तब की बात है, पहले जो देते थे, जब लड़की की शादी होती थी उसको बहुत सारी चीजें दी जाती थी शादी में. Ma'am, Rutu here. Yes, बोलो. Ma'am, the basic intention was that their daughter should be always happy and उसका मान बना रहे, उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिले, बिकॉज ज्यादा पैसे दिए होते हैं इसलिए. Okay, any other person? मैम मैम अगर किसी के पास अगर इकोनॉमिक Sorry? प्रॉब्लम या कल मैम मैम इट मे बी फाइनेंशियल हेल्प. यस मैम, अगर कल उठकर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो शी कैन यूज दैट डाउरी. Okay, क्यों ऐसा? That was स्त्रीधन, नो? हेलो मैम. हाँ. हेमलता हियर. मैम वो मतलब वो जो भी देते हैं, मतलब वो नया एटमॉस्फेयर होता है उसके लिए, सब अनजान होते हैं उसके लिए, ताकि वो जो भी उसको मिलता है शादी में, वो उसको यूज कर सकती है किसी, मतलब वो अनकंफर्टेबल या फील करती है उस किसी के पास मांगने के लिए या ऐसे में. Any other person? किसी को आइडिया है? यस मैम. हेलो मैम. हाँ बोलो. ऐसा भी हो सकता है कि लड़की को अपने घर में जो फैसिलिटीज मिल रही थी शायद उसको नए घर में ना मिले, तो इसके लिए वो कुछ चीजें पहले से उसके साथ देते हैं. Okay. All of you know about Hindu code bill? What are the rights of the daughter? What were the rights of the daughter earlier, and what are the rights of the daughter now? Do you know that difference? Suppose my father is अभी का there. पता है. हाँ. अभी का पता है, पहले का नहीं पता. अभी ये है कि मतलब राइट जो पूरा है ह्यूमन राइट, उसमें है कि डॉटर के राइट अगर विल में होने चाहिए, फिर डॉटर इन लॉ है तो ये सब बिल में होना चाहिए, 50% होना चाहिए, वो सब डिफरेंट. मतलब ये अभी का सिनेरियो है. मैम आई थिंक अर्लियर ऐसा कॉन्सेप्ट था कि ओनली सन्स, ऐसा था कि जो भी प्रॉपर्टी एंसेस्टर्स की होती है वो या तो सन, मतलब मोस्टली सन की होती है, ऐसा कंसिडर होता है. तो जो प्रॉपर्टी हम जो भी अगर एज अ डाउरी हम गर्ल्स को दे सकते थे वो पेरेंट्स दे देते थे कि बाद में वो उसके पास ही रहेगा. दैट वे आई थिंक डाउरी सिस्टम ओरिजिनेटेड. That is the exactly the reason. कौन बोला? मैम शोभिता. Shobita, that is the reason actually, that because the daughters were not claiming their right on the father's property at that time, and they were not given legal rights. Only the son is given legal right. Okay, so then what is the understanding कि जब भी उसकी शादी होती है या जब भी उसको देने का मौका मिलता है, पिता है या भाई है या घर में जो भी है उसके परिवार में, जब भी उनको मौका मिलता है, दे यूज टू गिव एज अ कर्टसी कि भाई तुमने ऐसे तो कुछ मांगा नहीं है, हमने तुमको ऐसे तो कुछ दिया नहीं है. सो दिस इज वन रीजन. फिर देर इज अभी हम जिसको क्या बोलते हैं कि शादी में सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे तब,
अगर आप देखो तो चांदलो व्यवहार चलता है यहाँ गुजरात में, जैसे हर जगह पे कुछ ना कुछ लिखावा लिखाना होता है शादी में। तो वो जो होता है वो भी कि तब ऐसा था, एवरीबडी वाज नॉट फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग, सो एवरीबडी यूज्ड टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर साइड। फिर डॉटर्स जो थी, वो डॉटर्स को भाई लोग दे या ना दे, अगर पिता अपनी एग्जिस्टेंस में ही वो चीजें दे देना चाहता था। तो दिस वाज वन रीजन। Second reason could be girls were not so educated, so fathers were knowing that कि इसको कुछ जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, तो उसको हम गुजरात में बोलते हैं स्त्री धन, गहना देते हैं, चढ़ावा देते हैं, बहुत सारा सोना देते हैं। तो ये जो सारी चीजें थी वो in the difficult time the daughter can use it, तो इसीलिए देते थे। बट उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, यही चीज कि बिकॉज शी इज नॉट क्लेमिंग दैट राइट। अभी क्या हो गया, अभी गर्ल्स आर एजुकेटेड, girls are given that right also in the father's property, girls are having equal right in the father's property now। एक बेटा और एक बेटी है तो फादर की प्रॉपर्टी में दोनों को इक्वल राइट मिलता है, जो कि पहले नहीं मिलता था, ना कि वो नाइदर दे वर क्लेमिंग। सो इन रिटर्न the son is always taking care of, I mean the brother is always taking care of the daughter, father is always taking care of the daughter, that कुछ भी प्रसंग है, कुछ भी है तो वो उनको थोड़ा केयर ले लेते थे। अब वो ओरिजिन था, अब उसका साइड इफेक्ट क्या हो गया, दिखाना हो गया, दिखावा हो गया, मतलब पता नहीं क्या क्या हो गया। सो दिस इज हाउ वी वर थिंकिंग कि ऐसे हमने असाइनमेंट दिए थे बच्चों को, एंड स्टूडेंट्स हैव आइडेंटिफाइड इट फ्रॉम द मल्टीडिसिप्लिनरी। जया, यस यू वांटेड टू से समथिंग, नाउ यू कैन टेक अप एंड यू कैन एंड आल्सो क्लास। No, madam, you continue. Okay. I think I've lost the link of what I was saying. नहीं कोई बात नहीं, आई हैड टेकन अ नोट जो तुम डिस्कस कर रही थी उस वक्त उसका, और अभी हम लोगों ने आज जनरल डिस्कशन ही किया अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम असाइनमेंट ऐसा लें जिसमें ऑल द डिसिप्लिनरी नॉलेज शुड बी इंटरलिंक्ड समवेयर। तो ऐसा एक साल हमने असाइनमेंट दिया था। फिर लास्ट ईयर तो आई थिंक जयलक्ष्मी ये मेघा के साथ हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया था, दैट वाज द सेम असाइनमेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वही था ना ये? हाँ मैडम। हाँ, taking one topic from any subject and then you will utilize it to link the different disciplinary knowledge. For example, if it is about soil, suppose someone has taken up a topic from soil, then about different disciplines, how you can link, can there be mathematics in that, can there be like you have ratio and proportion in that, कितना रेशियो में मैन्योर डालना है, कितना सॉइल डालना है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, अगर प्लांट का टैप रूट सिस्टम है तो कितना डीप होना चाहिए, तो दैट ऑल काउंट्स टू मैथ्स, उसमें मैथ्स का नॉलेज चाहिए। फिर साइंस का, जैसे सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लैक सॉइल है कि रेड सॉइल है, तो उसमें कौन सा क्या वो हेलो, स्टूडेंट्स हैड प्रेजेंटेड, उनके कोई भी सेकेंडरी के बुक में से लेके उन्होंने अलग अलग डिसिप्लिन्स का कौन सा नॉलेज उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैसा उन्होंने असाइनमेंट बनाया था, पर ऑफ कोर्स इट वाज इन ग्रुप। Okay, so I think Jaya, we should end the class because they have next class within 5 minutes. We may continue the same discussion in the next class, and then we'll finalize your assignment. Students will finalize it maybe next week, and we'll give it to you. Fine? Yeah. Okay, madam. Okay. Chalo, students. All of you have a nice day.